بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ وضو کے فرائض پہ بنائی تھی، جس میں میں نے وضو کے فرائض پوری تفصیل سے بیان کیے تھے۔ جن حضرات نے نہیں دیکھی ہے وہ آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، بڑی ہی نفع مند ویڈیو ہے۔ پھر آئیے اب بیان کرتے ہیں وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے وضو کے فرائض کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جا کر دیکھ لے، تاکہ اس کو پورے طور سے معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں وضو کی سنتوں کا بیان۔ تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ وضو کی سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ اب نیت کرنے کے دو طریقے ہیں، پہلا دل میں نیت کرے، دوسرا زبان اور دل دونوں سے نیت کریں۔ دل اور زبان دونوں سے نیت کرنا افضل اور اولا ہے بنسبت دل کے نیت کرنے سے۔ اگر اس نے صرف دل سے نیت کر لی تو کافی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس شخص نے نیت کی نہیں، بھول گیا یا نہیں کر پایا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں اس کا آپ کو جواب بتا دوں کہ جس شخص نے نیت نہیں کی یا نہیں کر پایا تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وضو کے کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے نیت ضرور کر لے، ورنہ آپ ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو محترم حضرات، یہ ہو گئی نیت، پہلی سنت۔ تو آئیے اب چلتے ہیں دوسری سنت کی طرف۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ شروع میں پڑھنا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس سے وضو کے کمال میں وضو پوری طور سے مکمل ہوتا ہے، کیونکہ بسم اللہ جس کام کے شروع میں نہ پڑھا جائے وہ کام ادھورا اور ناقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر جس شخص نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا وہ گویا کہ ادھورا اور ناقص رہ گیا۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کا وضو نہیں ہوا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور سنت کے ترک کرنے سے عمل فاسد نہیں ہوتا، وضو خراب نہیں ہوگا، وضو تو ہو جائے گا اس کا۔ البتہ بسم اللہ پڑھنے کی سنت کا اور اس میں جو 4 چاند رہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اس لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ہی وضو بنایا کرے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں تیسری سنت کی طرف۔ تیسری سنت ہے ہاتھوں کو گٹھوں سمیت دھونا۔ یہاں دیکھ لیں، میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ہاتھوں کو گٹھوں سمیت دھونا، ان دونوں ہاتھوں کو شروع میں وضو بنانے سے پہلے خوب بڑھیا سے دھو لے تاکہ یہ صاف ہو جائیں، کیونکہ عموماً آدمی اس کا استعمال کرتا ہے اور یہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو صاف کر کے اعضائے وضو پہ اس کو استعمال کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں جو گندگی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی اور دوسرے اعضاء میں گندگی نہیں لگے گی۔ تو یہ ہو گئی تیسری سنت۔ اب چلتے ہیں چوتھی سنت کی طرف۔ چوتھی سنت ہے مسواک کرنا۔ محترم ناظرین، اس پر غور فرمائے گا، یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے۔ مسواک کرنا کیسے سنت ہے اور کس طرح پکڑیں گے تو سنت ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی خامیوں کی وجہ سے، اس کا خاص خیال رکھیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مسواک کرنا وہ بھی کیسے سنت ہے کہ آپ مسواک کو پہلے پکڑنا سیکھیں۔ مان لیجیے یہ مسواک ہے، اس کو مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس مسواک کو چھوٹی والی انگلی پر رکھیں۔ چھوٹی والی انگلی پر رکھنے کے بعد جو 3 انگلی بچتی ہے اس کو اوپر رکھیں اور انگوٹھے کو نیچے رکھیں۔ آپ اس کو غور سے دیکھ لیجئے، یہی پکڑنے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اس سے مٹھی باندھ لی تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اس کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو بالکل اس طرح پکڑیں، تب جا کر کے آپ کی مکمل سنت ادا ہوگی۔ اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کرنے کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو شروع میں تو دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ جو ہے دائیں جانب سے اوپر کے دانت سے شروع کریں، پھر بایاں اوپر کا دانت صاف کریں، پھر اس کے بعد نیچے دایاں والا دانت صاف کریں، پھر اس کے بعد بایاں صاف کریں،
फिर मिसवाक को धोएं, फिर उसके बाद ऊपर का दायां दांत साफ करें, फिर उसके बाद बायां ऊपर का दांत साफ करें, फिर इसी तरह नीचे का भी करें, फिर धोएं, फिर एक मर्तबा ऐसे करें। कुल मिलाकर ये आपको 3 बार करना है, तब जाके आपकी सही से पूरी कामिल तौर पे सुन्नत अदा होगी। इस तरह करेंगे तो आपकी सुन्नत पे कमाल आएगा और सवाब भरपूर मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो ये है कि जिस शख्स ने मिसवाक के बजाय टूथब्रश या कोलगेट वगैरह जो करते हैं हजरात, तो जो हजरात कोलगेट वगैरह कर लेते हैं या मिसवाक करते हैं, तो क्या इससे मिसवाक की सुन्नत अदा होगी या नहीं अदा होगी, ये सवाल रहता है। तो इसका जवाब मैं बता देना चाहता हूं आपको कि टूथ ब्रश या कोलगेट करने से मिसवाक की सुन्नत हरगिज नहीं अदा होती, बिल्कुल भी उसमें सुन्नत का सवाब नहीं मिलता है। इसलिए जरूरी है कि मिसवाक से ही किया जाए, उस मिसवाक से जो मुतय्यन किए गए हैं मिसवाक के लिए। ये रही थी मिसवाक की सुन्नत। अब आइए चलते हैं अगली सुन्नत की तरफ। अगली सुन्नत है चुल्लू में पानी लेकर कुल्ली करना। अगली सुन्नत है चुल्लू में पानी लेकर कुल्ली करना। अब वो कैसे कुल्ली की जाएगी, देखिए 3 मरतबा कुल्ली करना है, ये याद रखिएगा। और 3 मरतबा कुल्ली करना है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि 3 मरतबा हाथ में पानी ले, 3 मरतबा चुल्लू में पानी ले, ठीक है। देख लीजिए 3 मरतबा चुल्लू में पानी ले और 3 मरतबा ऐसे कुल्ली करें। 3 मरतबा पानी पे नया बार बार पानी लेना। आपको याद रखें कि 3 बार पानी लेना है, एक बार ले फिर थूके, फिर पानी ले फिर थूके, इस तरह 3 बार करना है। एक मरतबा में लेकर इसे ऐसे करके नहीं थूकना है, वरना उससे सुन्नत अदा नहीं होगी। अब कुल्ली करने के दौरान उसको चाहिए कि वो गरारा भी करे, हलक में गरारा भी करें, जैसे कि आप जानते हैं गरारा किसे कहते हैं, गरारा करें। लेकिन रोजेदार के लिए गरारा करना मना है। रोजेदार गरारा ना करे वरना हलक में पानी चला जाएगा, इसका खास ख्याल रखें। फिर चलते हैं अगली सुन्नत की तरफ। अगली सुन्नत है नाक में पानी डालना 3 मरतबा। उसी तरह जैसे कुल्ली करते हैं ना, वैसे नाक में पानी डालना 3 चुल्लू से नए पानी लेकर 3 नए चुल्लू से पानी लेकर डालना। एक बार के चुल्लू से 3 मरतबा नाक न साफ करें, वरना ये सुन्नत अदा नहीं होगी। बल्कि 3 बार नया पानी ले, फिर बार साफ करें, फिर साफ करें, फिर ले, फिर निकाले, फिर ले, इस तरह करके साफ करें, तब जाके आपकी सुन्नत मुकम्मल तौर से अदा होगी। अब नाक के दरमियान, नाक के अंदर पानी कहाँ तक पहुंचाना है, ये मैं बात करूं। नाक के बासे तक आपको पानी पहुंचाना है, यहाँ देख लें, नाक के बासे तक आपको पानी पहुंचाना है। लेकिन जो रोजेदार है उसको अंदर तक पानी नहीं पहुंचाना, बल्कि नर्म हड्डी तक लाकर निकाल दे, वरना पानी अंदर चला जाएगा। इसलिए रोजेदार के लिए पानी अंदर तक पहुंचाना जरूरी नहीं है। अब उसके बाद नाक साफ करेंगे, बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से नाक को साफ कर ले, इस तरह करके अंदर उंगली घुसाकर साफ कर ले, इस तरह सुन्नत नाक की अदा होगी। तो ये होगी नाक की सुन्नत। अब चलते हैं अगली सुन्नत की तरफ। अगली सुन्नत है दाढ़ी का खिलाल करना। दाढ़ी का खिलाल करना और हाथ और पैर की उंगलियों का खिलाल करना। वो कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। दाढ़ी का खिलाल, इन हाथों को पीछे की जानिब से लाना है, पीछे की जानिब से इस तरह आगे लेकर आए, तब जाकर के दाढ़ी का खिलाल होगा, ठीक है। अब हाथों का खिलाल कैसे करना है, हाथों का खिलाल इस तरह करना है, बाएं को दाएं पे रख के इस तरह खिलाल कर ले, ठीक है, इस तरह करके खिलाल कर ले, इसी तरह पैरों में भी खिलाल कर ले। ये सुन्नत तरीका है खिलाल करना। अब उसके बाद चलते हैं अगली सुन्नत की तरफ। अगली सुन्नत है हर उज़्व को, हर टुकड़े को, यानी जिसको हम लोग धोते वक्त, उसको 3 मरतबा धोना। सुन लीजिए, 3 मरतबा। अब बहुत से लोग 3 मरतबा धोते कैसे हैं, वो लोग बहुत गलत करते हैं कि मान लीजिए आपने थोड़ा सा पानी लिया और आधा छेड़ा एक मरतबा भीग गया, फिर थोड़ा सा पानी लिया, फिर और ज्यादा भीग गया, फिर एक बार तीसरी मरतबा में पूरा भिगा लिया, तो ये समझते हैं कि पूरा चेहरा भीग गया, 3 मरतबा सुन्नत अदा हुई। मैं कहता हूँ इस तरह सुन्नत अदा नहीं होती, बल्कि सुन्नत अदा होती है कि 1 मरतबा पानी ले, बल्कि सुन्नत इस तरह करेंगे कि सुन्नत तरीका यह है कि पानी लेकर पूरा चेहरा धोएं, जितना चेहरा धोना फर्ज है, जितना आज़ू का धोना फर्ज है, उसको पूरा धोएं 1 मरतबा,
फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा धोने के लिए उसको फिर से पूरी तौर से पानी बहाएं, फिर तीसरी मर्तबा भी पूरे तौर से पानी बहाएं। पूरा हिस्सा हर मर्तबा में भीगना चाहिए, तब जाकर के आपकी सुन्नत 3 मर्तबा धोने वाली अदा होगी, वरना अदा नहीं होगी। ठीक है, हर मर्तबा में पूरा हिस्सा भीगना चाहिए, इसका खास ख्याल रखें। फिर चलते हैं अगली सुन्नत की तरफ। अगली सुन्नत है पूरे सर का मसा करना। ध्यान रखिएगा, पूरे सर का मसा करना। अब पूरे सर का मसा करने के दरमियान कानों का भी मसा कर ले, कानों को भी साफ कर ले, ये भी सुन्नत है, ये भी साथ में आ जाएगा। सर के समेत, पूरे सर के समेत कानों का भी मसा करना। अब पूरे सर के समेत पूरा सर का मसा कैसे करेंगे वो मैंने अगली वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें बता दे रहा हूं कि कैसे पूरे सर का और कान समेत मसा करना है। इन तीनों को उंगलियों को जोड़कर पूरे सर का, तीनों उंगली को जोड़ लें और जोड़ने के बाद यहां से शुरू करें, फिर पीछे लेके जाएं, फिर आगे लेके आए, फिर उसके बाद कान, ये अंगूठा कान के पीछे से ले लें, फिर आगे से ले ले। ठीक है, लेने के बाद अब ये उंगलियों में तरी पहुंच गई, तरी बाकी है, अब इसको कान के अंदर घुमा ले। ठीक है, इस तौर से पूरी सुन्नत अदा होगी। ये रही सर के मसा की सुन्नत। ठीक है, अब चलते हैं अगली सुन्नत की तरफ। अगली सुन्नत है तरतीबवार धोना। ध्यान दीजिएगा, तरतीबवार धोना। तरतीब कैसे है वजू की वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा एकदम स्टार्टिंग से सुन्नत तरीके पर। पहले तो आप हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद कुल्ली करेंगे, फिर उसके बाद नाक में पानी डालेंगे, फिर चेहरा धोएंगे, फिर दोनों हाथों को यहाँ तक धोएंगे, फिर उसके बाद पैरों को टखनों समेत धोएंगे। ये है तरतीब पूरी। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहाँ पर किसी शख्स ने तरतीब को पलट दिया या उल्टी हो गई, तरतीब इधर उधर कर दी, तो क्या उसका वजू होगा या नहीं। मसलन तरतीब कैसे इधर उधर कर दी कि पहले उसने जो है सर का मसा कर लिया, फिर उसके बाद इस हाथ को धो लिया, फिर उसके बाद चेहरा को धो लिया, फिर पैर को धो लिया, या पहले पैर धोया, फिर उसके बाद मसा किया, फिर उसके बाद हाथों को धोया, फिर उसके बाद चेहरा धोया, इस तरह तरतीब पलट दी, तो क्या उस शख्स का वजू होगा या नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको जवाब बता देता हूं कि उस शख्स का वजू हो जाएगा। खिलाफे तरतीब रहेगा लेकिन उसका वजू हो जाएगा और वो नमाज पढ़ सकता है। अलबत्ता तरतीब की सुन्नत जो है उसका सवाब नहीं मिलेगा, उसके सवाब वो नहीं पा पाएगा। ये है तरतीब की सुन्नत। अब आगे चलते हैं, अगली सुन्नत है दाढ़ी के नीचे के बाल। दाढ़ी के नीचे वाले बाल हैं, जो चेहरे को छोड़कर जो नीचे का हिस्सा जो दाढ़ी का बचता है उसके ऊपर मसा करना। ठीक है, ये भी सुन्नत है, इसके ऊपर भी मसा कर लिया करें, ये भी सुन्नत है। अगली सुन्नत की तरफ चलते हैं। अगली सुन्नत है पैर दर पैर धोना। पैर दर पैर कैसे धोना है मैं बता देता हूँ। पैदर पर यानी एक के बाद एक। और पैदर पर का मतलब ये भी होता है, पूरी तौर से समझ लें, इसमें गलती ना करें। मसलन जैसे कि इसने चेहरा धोया, चेहरा धोने के बाद फौरन हाथ धोए, लेट ना लगाए। लेट लगाने से पैदर पे वाली सुन्नत छूट जाएगी। ठीक है, अब कितनी लेट लगेगी, कितनी लेट बाद धोएंगे तो सुन्नत छूटेगी, उसका वक्त भी सुन ले। कितनी ताखीर नहीं होनी चाहिए, इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए कि पहला अज़्व आपने धोया है, मतलब मसलन आपने चेहरा धोया, चेहरे के पानी के खुश्क होने से पहले आप हाथों को धो लें। इतनी ताखीर करने से, अगर आपने इससे ज्यादा ताखीर कर दी कि चेहरा भी सूख गया, तो आपको जो सुन्नत का सवाब है, एक सुन्नत आपकी तर्क हो जाएगी, पैदर पै वाली सुन्नत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप एक के बाद दिगरे फौरन आप जो है हर अज़्व को धोते जाएं। ये थे मोहतरम नाज़रीन कुछ सुन्नतें जो मैंने इस वीडियो में बयान की है, जो आपके लिए नफ़ामंद होगी और इस पर अमल कीजिए। यकीनन आप खुद ध्यान दीजिए कि एक वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं और कितना सवाब हम इस वज़ू से हासिल कर सकते हैं। यकीनन आप अगर इन सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आप करीब भी हो जाएंगे और बेपनाह सवाब के मालिक भी होंगे इंशाअल्लाह। फिर जैसा कि मैंने अभी वज़ू की सुन्नतें बयान कर दी हैं, फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह वज़ू के मुस्तहब्बात जो आएंगे मैं उसको बयान करूंगा तरतीब से, ताकि आपको और भी सवाब हासिल हो सके और भी सवाब हासिल कर सकें। अब
اب تک کے لیے بس اتنا ہی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے مسائل فقہ نام کا چینل، یعنی جو شریعت کے مسائل ہیں اس کو آپ جان سکیں، اس لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ جاننا ہو تو ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کو اس مسئلے پر میں ویڈیو بنا کر دوں گا اور اس مسئلے کا حل بنا کر دوں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ثواب کما سکیں اور ان سنتوں کو پا سکیں، سنتوں کو حاصل کر سکیں اور سنتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے آپ کو سنتوں کا ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، دھیان دیجیے آپ کو کتنی سنتیں ہیں اور اس میں کتنی زیادہ سنتوں کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں مستحبات وضو کے بیان کروں گا، تو تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔